Assalamu alaikum dear students, I am Syed Murtaza Rabbani. Since in last lecture we know we have already completed pulmonary volumes and pulmonary capacities. In that very lecture I told you about various pulmonary volumes and various pulmonary capacities. For example, pulmonary volumes. So मैंने आपको तब बोला था जो pulmonary volumes होते हैं, these are simply amount of air taken into the lungs या हमारे lungs जितना भी air रिसीव करते हैं या होल्ड करते हैं या एक्सपेल करते हैं. सो अमाउंट ऑफ एयर आइदर रिसीव्ड बाय द लंग्स और होल्डेड बाय द लंग्स और एक्सपेल्ड आउट बाय द लंग्स, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? पल्मोनरी वॉल्यूम्स, या हम इन्हीं को बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. नाउ प्लीज हैव अ लुक. मैंने उसी लेक्चर में आपको बताया था ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स है, वी हैव डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स. पहला पल्मोनरी वॉल्यूम जो मैंने आपको बोला था, वी हैव टाइडल वॉल्यूम. वी हैव व्हाट? टाइडल वॉल्यूम. देन उसके बाद मैंने आपको कहा था वी हैव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. रिजर्व वॉल्यूम. एंड नंबर थर्ड वी हैव expiratory reserve volume. उसके बाद नंबर फोर्थ वी हैव रेजिडुअल वॉल्यूम. नाउ प्लीज हैव अ लुक. सो मैंने आपको कहा जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स होते हैं, इट इज सिंपली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एयर रिसीव्ड बाय द लंग्स, होल्डेड बाय द लंग्स और एक्सपेल्ड आउट बाय द लंग्स. इन्हीं को हम बोलते हैं या तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. उसके बाद मैंने आपको बोला था वी हैव डिफरेंट पल्मोनरी वॉल्यूम्स. नंबर फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम, देन वी हैव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम. उसी लेक्चर में मैंने आपको बोला था टाइडल वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे इट इज 500 ml. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे इट इज 2500 to 3000 ml. देन अगर आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करोगे इट इज 1100 ml. मैंने आपको बोला था इट इज फ्रॉम 1000 to 1200 ml और एवरेज ये होता है 1100 ml. और रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे ये होता है 1200 ml. उसके बाद मैंने आपको कहा व्हेन वेरियस pulmonary volumes or respiratory volumes are combined, when various respiratory volumes or pulmonary volumes are combined, they give rise to pulmonary capacities. So they give rise to what? Pulmonary capacities. So various pulmonary capacities are formed when different pulmonary volumes combine with each other. So यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो हमारे pulmonary capacities होते हैं, we have number first inspiratory capacity. क्या है? Inspiratory capacity. Then we have number next is expiratory capacity. Expiratory capacity. Then number next थर्ड वाला हमारे पास होता है that is called as functional residual capacity, जिसको हम FRC भी कहते हैं. Number next fourth one we have then vital capacity. And number next we have fifth, that is total lung capacity. Now please have a look. So मैंने आपको बताया कि when different pulmonary volumes are combined with each other, they form what? Pulmonary capacities. So pulmonary capacity में we have this inspiratory capacity, expiratory capacity, then we have functional residual capacity, then we have vital capacity, and next we have total lung capacity. These are the different capacities which are formed after the combination of different pulmonary volumes. So उस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि ग्राफ जो होता है that is very important. ग्राफ हमारा जो होता है that is very important. So let me draw these very pulmonary volumes and pulmonary capacities on the graph so that if any question is asked in the NEET exam or any other exam जहां पे ग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, so it will be easy for you people to answer. So please have a look.
let me show you how we will draw the graph which shows various pulmonary volumes and various pulmonary capacities. Now please have a look. Number first, I will do one thing. I will draw two lines in the center. This is one and this is another. This is another. So शाबाश. अब यहाँ पे प्लीज हैव अ लुक. हम ऐसा करेंगे कि जो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी पीक, उसके बाद वन मोर पीक एंड देन वी हैव वन मोर पीक. प्लीज बेटा हैव अ लुक. सो इसकी अगर आप बात करोगे, छोटी सी पीक है, इट रिप्रेजेंट्स द टाइडल वॉल्यूम. सो यहां से लेकर यहां तक जो ये वाली पीक है, इट रिप्रेजेंट्स द टाइडल वॉल्यूम. सो मैं यहां पे लिखूंगा टीवी. सो टीवी की बात करोगे टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको बोला कि टाइडल वॉल्यूम का जो अमाउंट ऑफ एयर होता है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, दैट इज 500 ml. कितना होता है बेटा? 500 ml. सो पहला वाला क्या है? टाइडल वॉल्यूम. और अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम इन टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? दैट इज 500 ml. उसके बाद नंबर नेक्स्ट, आई विल ड्रा इट बाय द नेक्स्ट पेन, बाय नेक्स्ट कलर. सो यहां पे देन वी हैव, दिस इज ये वाला जो है दिस. देन वी हैव IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व volume. Inspiratory reserve volume. So let us draw one more this line over here like this. Fine. सो ये और एक लाइन है. सो मैं मानता हूं कि यहां पे जब पहले मैंने आपको बोला जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है कि यहां पे हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं और उससे पहले हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं, उसके बाद हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं. सो यहां पे इसका वैल्यू मैंने आपको बोला था, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है उसका वैल्यू होता है दैट इज 2500 ml टू 3000 ml. फाइन. अब देख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक जो ये पीक है, दिस पीक रिप्रेजेंट्स व्हाट? It represents the inspiratory reserve volume. So यहां से लेकर यहां तक it represents what? Tidal volume. और ये वाली पीक यहां से लेकर यहां तक ये क्या रिप्रेजेंट करती है? inspiratory reserve volume. मैंने आपको बोला था जो inspiratory reserve volume होता है, it is also called as what? Complemental air. क्या बोलते हैं बेटा? Complemental air. So मैं यहां लिख के रखूंगा complemental air. शाबाश. उसके बाद नंबर नेक्स्ट. नाउ प्लीज हैव अ लुक. उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे, देन वी हैव दिस कर्व गोइंग समवेयर अपवर्ड्स, देन इट्स कमिंग डाउन. फाइन. फाइन. सो यहां पे मैंने आपको बोला कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स हमने डिस्कस किए थे पहले, टाइडल वॉल्यूम, देन वी हैव व्हाट? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नाउ नंबर थर्ड इज दिस कर्व गोइंग डाउनवर्ड्स. दिस शोज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो यहां पे आप ख्याल रखिए, यहां से लेकर यहां तक. सो लेट अस ड्रा वन मोर लाइन ओवर हियर, दिस गोइंग फ्रॉम हियर. नाउ प्लीज हैव अ लुक. सो इस वाली कर्व की अगर हम बात करेंगे, यहां से लेकर यहां तक, दिस कर्व पहले नॉर्मली वी हैव व्हाट? वी हैव बिफोर दिस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो थर्ड वाला मैं लिखूंगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसकी अगर आप बात करोगे, इससे पहले हम क्या काम करते हैं? नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन. सो दिस कर्व डाउनवर्ड्स, इट शोज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो मैंने आपको कहा था कि ये होता है 1200 ml, लेकिन यहां पे एवरेज जो निकालते हैं दैट इज 1100 ml. सो दिस इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. देन नंबर नेक्स्ट, मैंने बोला आपको जो यहां पे
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद और एक हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम. That is, I will show you like this. फाइन. सो ये वाला कर्व जो नीचे जाता है, सो पहले हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करते हैं, मीन्स कि वी आर एक्सपेलिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन. सो उसमें जो एयर रहता है वो कितना रहता है, 1100 ml. देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारा इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो हमारे लंग्स में एयर रहता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. सो ये वाला पार्ट जो हमारा है, दिस वन, this shows the residual volume. This shows the residual volume. So RV. Residual volume की अगर आप बात करोगे, मैंने आपको बोला है 1200 ml होता है रेजिडुअल वॉल्यूम. मीन्स कि रेजिडुअल वॉल्यूम होता है उतना कि अगर हम कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, कितना भी फोर्सफुल एक्सपायर करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे लंग्स में जो एयर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम. सो द एयर व्हिच रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दैट इज हाउ मच, 1200 ml. एंड दिस कर्व शोज मींस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी, मीन्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में रहता है वो क्या है, रिजर्व वॉल्यूम. सो दिस शोज द रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम इन अवर लंग्स. बात समझ आ रही है शाबाश. सो ये हो गए हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स. उसके बाद देन वी हैव पल्मोनरी कैपेसिटीज. अगर पल्मोनरी कैपेसिटीज की आप बात करोगे, जो पहला इनको हमने डिनोट किया बाय 1, 2 and 3. सो लेट अस डिनोट देम बाय अल्फाबेट्स. सो पहले यहां पे ख्याल रखिए. सो जो हमारी पहली जो पल्मोनरी कैपेसिटी है, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. सो मैंने आपको बताया है जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्विवेलेंट टू, नंबर फर्स्ट वी हैव टाइडल वॉल्यूम प्लस वी हैव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. प्लीज हैव लुक बेटा, मैं बोलता हूं जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आप क्या काम करते हो, फर्स्ट यू आर परफॉर्मिंग अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. नॉर्मल एक्सपायरेशन मींस नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम. उसके बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन. सो यहां पे जो है, दिस शोज, दिस ग्राफ शोज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. यहां से लेकर यहां तक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और यहां से लेकर यहां तक टाइडल वॉल्यूम. सो टाइडल वॉल्यूम एंड देन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. सो इट इज व्हाट, इट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. नंबर नेक्स्ट वी हैव व्हाट, वन मोर थिंग, वी हैव वन मोर थिंग. यहां पे नंबर नेक्स्ट वी हैव इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बाद वी हैव एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. वी हैव व्हाट, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. देखो मैंने आपको बोला कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी करने के वक्त हम क्या काम करते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के वक्त पहले हम करते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन. सो टाइडल वॉल्यूम, यहां पे टाइडल वॉल्यूम, यहां तक टाइडल वॉल्यूम. उसके बाद नंबर नेक्स्ट वी हैव एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो फोर्सफुल एक्सपायरेशन, सो नॉर्मल इंस्पायरेशन, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन. सो दिस कम्स आउट टू बी आवर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी, सो यहां पे मैं लिखूंगा इसको बी. सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्विवेलेंट टू, यहां पे जो हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, सो पहले हमारा टाइडल वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो यहां पे टाइडल वॉल्यूम के साथ ERV, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. देन नंबर नेक्स्ट, सो उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देन वी हैव वाइटल कैपेसिटी. सो वाइटल कैपेसिटी की अगर आप बात करेंगे, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर वाइटल कैपेसिटी. सो ये हो गया बी, इसको हम लिखेंगे सी. सो वाइटल कैपेसिटी की अगर आप बात करोगे, हमारी वाइटल कैपेसिटी में आता है नंबर 1 वी हैव टाइडल वॉल्यूम, देन वी हैव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन वी हैव एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नाउ प्लीज हैव अ लुक. सो पहले सबसे पहले हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम. सो टाइडल वॉल्यूम आता है यहां पे. सो दिस शोज द टाइडल वॉल्यूम. नाउ नंबर नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मींस इफ दिस इज द टाइडल वॉल्यूम, देन दिस पीक शोज अस व्हाट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, सो दिस शोज अस, नंबर नेक्स्ट दिस शोज अस
tidal volume. This shows us inspiratory reserve volume. Then what more we have? That's expiratory reserve volume. So this peak shows expiratory reserve volume. So यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास ये वाला एरिया है या ये वाला एरिया जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, it shows what? Vital capacity. So in vital capacity we have tidal volume, we have inspiratory reserve volume, then we have what? Expiratory reserve volume. So it comes out to be what? Vital capacity. Then the last one, that is total lung capacity. Total lung capacity, T, L and C, D. सो टोटल लंग कैपेसिटी की अगर आप बात करोगे, जो टोटल लंग कैपेसिटी है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया, वहां पे क्या होता है, हमारे पास वी हैव फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम, फाइन, उसके बाद वी हैव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फाइन, उसके बाद वी हैव एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फाइन, उसके बाद वी हैव व्हाट? रेजिडुअल वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? जब इनको हम ऐड करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 5800। नाउ प्लीज हैव अ लुक। सो पहले देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम कहां से है, यहां से। सो लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम ओवर हियर, फाइन, ये रेजिडुअल है, हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, फाइन। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सो ये वाला क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फाइन। उसके बाद वी हैव व्हाट? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से पहले मैं बताऊंगा, ये वाला जो है इट शोज व्हाट? टाइडल वॉल्यूम। सो बढ़ाइए आगे, फाइन। उसके बाद लास्ट वाला जो है हमारे पास, दैट इज व्हाट? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ड्रैगिंग इट अपवर्ड्स, सो दिस शोज अवर व्हाट? टाइडल वॉल्यूम। सो मैंने आपको बोला दिस ग्राफ शोज यू डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल वहां क्वेश्चन आया होगा, यहाँ पे इस कर्व को नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ होगा, आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई द पीक, ये कौन सी पीक है। सो इसी तरीके से नाउ लेट मी कंक्लूड इट लाइक दिस। सो ये वाला ग्राफ जो है इट शोज व्हाट? टाइडल वॉल्यूम, फाइन, शाबाश। उसके बाद देन वी हैव number next upwards, number next is it is inspiratory reserve volume. Then number next we have this downward graph, it is expiratory reserve volume. Then one more important, expiration करने के बाद भी जो हमारे लंग्स में रहता है, that's called what? Residual volume. ये वाला पीक यहां से लेकर यहां तक क्या दिखाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद नंबर नेक्स्ट वी हैव, सो दीज आर द पल्मोनरी वॉल्यूम्स। पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बाद हमारे पास कौन सी है? पल्मोनरी कैपेसिटीज। सो पहली पल्मोनरी कैपेसिटी वी हैव व्हाट? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो यहां पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सो यहां आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और नंबर नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम। सो इट फॉर्म्स योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देन नंबर नेक्स्ट वी हैव व्हाट? then we have expiratory capacity. Expiratory capacity में आता है हमारा क्या? टाइडल वॉल्यूम। एंड नंबर नेक्स्ट इज व्हाट? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ये वाली पीक दिखाती है। देन वी हैव नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज दैट? दैट इज वाइटल कैपेसिटी। हमारी वाइटल कैपेसिटी रिप्रेजेंट करती है टाइडल वॉल्यूम। सो ये वाला पोर्शन क्या दिखाता है? टाइडल वॉल्यूम। देन वी हैव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस अपर पीक यहां से। सो देन we have expiratory reserve volume, so this lower peak। बात समझ आ रही है? शाबाश। so this represents our vital capacity. Then last we have total lung capacity, and total lung capacity includes number first tidal volume, fine, so this is tidal volume. Then we have what? We have inspiratory reserve volume, this is inspiratory reserve volume. And then we have what? Expiratory reserve volume. And then we have residual residual volume. So this represents our total lung capacity. Please remember it by heart, it might be asked in the exam, and inshallah I hope you will do it by your own. Thank you so much.